So I think we all are in position how HashMap internally work. Let me see who else has joined. Anyone can explain? Who is going to explain how HashMap internally work? How HashMap internally work? Yes, sir, I want to explain. Yeah, please go ahead. It works upon a hashing mechanism. Mechanism is like it divides the reference, the hash code by its maximum number of size. Mm-hmm. Then the remainder will get the place in the list. Remainder would be the index number, right? On which Index that number object and it will will store. be placed in the list. Okay. So if any custom object I want to store in the HashMap, If you want to store any custom object, we need to take care about equal method and hashcode method. we have to override them, right? Override the equal method and hashcode method. Mm-hmm. Equal method helps to resolve the conflict if two objects Or get the two objects get the same hash code, right? same hash code, so it helps the resolve the problem Mm-hmm. by Resolving comparing the key and value. not key, not value, only key content it will check. If It will key is compare the same, key to if content. content of key are same, then it is going to replace with the old value. If keys content are not same, then it is going to store in a form of linked list. And that linked list also convert into the binary tree. Binary tree after 8. I mean, this enhance came in Java 1.8. Yes. Okay. So now I think Shyam, can you explain how HashMap internally work? Yes, sir. Yes. Sir, when I created a HashMap object, Mm-hmm. internally create a bucket. I The mean, size would be 0 to 15, right? yes, sir. Size will be 0 to 50, Mm-hmm. and when put through the object in the HashMap Mm-hmm. through the hashing technique, will find out the index. Very good. In the case, On basis of what, like it find out the index? On basis of what? Like value basis पे index find करता है या key basis पे index find करता है? key basis पे sir, hashing technique. और key का क्या करेगा? Hash code निकालेगा, right? It will get the hash code first. You know, hashing mechanism in nothing. वो key का क्या है? हर object का क्या hash code होता है, तो hash code निकालेगा. And उसको एक्सप्लेन करने की आपको जरूरत नहीं है. जस्ट आप क्या बोलोगे? हैशिंग मैकेनिज्म विल अप्लाई एंड थ्रू विच वी विल गेट इंडेक्स नंबर. ऑन दैट इंडेक्स नंबर द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू स्टोर. जब तक आपसे ये पूछा नहीं जाता कि हैशिंग मैकेनिज्म क्या होती है, आप उसको हैशिंग मैकेनिज्म ही बोल के आगे बढ़ जाओगे. मेन है कहीं ऐसा, इट हैपेंस मेनी टाइम्स, जब हम बता रहे हैं हम अपने ही आंसर में फंस जाते हैं. हमने जो आंसर दिया हम उसमें अटक गए. अब है ना, तो हमें क्या करना है? सिंपल एंड स्वीट रखना है. whenever we are going to create the object of HashMap, I mean एक 0 to 15 size की buckets like list will create. So any objects we are going to store in the HashMap, और आप क्या बोलोगे? HashMap. Very good point you raise. HashMap dot put आपने कॉल किया, right? I mean, Yes. put जब आपने कॉल किया, hashing mechanism will apply here basis on key and it will find out the index number. Okay, it will find out the index number. On that particular index this object is going to store. Okay, in the Java, अब आपका अगला होना चाहिए, in the Java there may be a chance two different object may have the same hash code. Okay, in that case what will happen? Same bucket, same index will come. So here is a hash collision or conflict will create. So this conflict,
So equal method came into picture here. तो दोनों की एक की पिक करेगा, द ऑब्जेक्ट विच इज ऑलरेडी स्टोर्ड, द ऑब्जेक्ट विच यू आर गोइंग टू स्टोर, दोनों की की पिक करेगा. उनके की के कंटेंट के बेसिस पे इट विल रिटर्न आइदर ट्रू और फॉल्स. ओके, अगर कंटेंट्स आर सेम देन इट इज गोइंग टू, सॉरी, इफ कंटेंट्स आर सेम देन ये क्या करेगा आपको, सॉरी नॉट, तो देन इट इज गोइंग टू रिप्लेसिंग द ओल्ड वैल्यू, है ना, ओल्ड Yes. वैल्यू को रिप्लेस कर देगा न्यू से एंड ओल्ड को रिटर्न बैक कर देगा. If keys are different, key के जो contents है those are different, then it is going to store in a some new link, link list, right? Or Yes. this link list also convert into the binary tree. This in hence came into Java 1.8. You got my point? तो Yes. ये एक वे होना चाहिए explanation का. Hi Nilesh, good morning. How are you? Nilesh, am I audible? Nilesh, am I audible? Yes, sir. So Nilesh, how HashMap internally work? कोशिश करो, try to give the answer how HashMap internally work. HashMap working on the basis of hash mechanism, Mm-hmm. and I mean, if I'm creating like HashMap is equal to new HashMap, what will happen? शुरुआत में यहाँ से करना है, right? जब भी हम HashMap is equal to new HashMap we are doing, what will happen? sir, we will create the object of HashMap. एक इसमें क्या होगा, एक लिस्ट क्रिएट होगी, द लिस्ट बकेट्स, आई मीन 0 to 15 बकेट्स की एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी. ओके, Yes, sir. तो जैसे ही आप हैशमैप इक्वल टू न्यू हैशमैप कर रहे हो, 0 to 15 बकेट्स की एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी. द साइज वुड बी हियर 16. ओके, यू गॉट माय पॉइंट Yes, sir. नीलेश? Yes, sir. जब भी आपको Yes, sir. एक्सप्लेन करना है तो यू नीड टू एक्सप्लेन. इससे पहले और मैं बताता हूँ आपको, सभी लोग ध्यान से सुनना. हैशमैप को नॉर्मल आप क्या बोलोगे, हैशमैप इज अ इम्प्लीमेंटेशन क्लास ऑफ मैप. It store the object in a form of key value pair. Okay, insertion order is not preserved, duplicates key are not allowed, null key is allowed only once. ये property normal आपने explain कर दी. Then you can come on this, whenever we are doing HashMap is equal to new HashMap, so 0 to 15 buckets will create, you know, the size would be 16 here, so that will create. So अब हम अगला क्या करेंगे, अब इसमें एलिमेंट्स ऐड करेंगे ना, तो वी विल यूज हैशमैप डॉट पुट. ओके, तो आपको क्या करें, हैशमैप डॉट पुट करेंगे हम लोग, तो देन हैशिंग मैकेनिज्म विल अप्लाई हियर. व्हाट इज हैशिंग मैकेनिज्म? इट विल पिक द की ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, एंड बेसिस ऑन दिस हैशिंग मैकेनिज्म वी विल गेट द बकेट नंबर, इंडेक्स वी विल गेट ऑफ दैट बकेट, of that list index हमें मिलेगा. On that index this object will store. Okay, तो अब this object will store, but अगला आपका क्या होना चाहिए, in Java there may be a chance two different hash code, two different object may have the same hash code. Java में ऐसा हो सकता है, ठीक है. In that case same buckets will come, same index will come. Don't confuse here bucket and index. Same index will come here. So here is a conflict will create. So equal method will came here and it will pick the key को pick करेगा जो object पहले से store है, और उसकी की pick करेगा जो object हम store कर रहा है. दोनों के content को आपस में equality check करेगा. If it is equal, then वो old value को replace कर देगा new से, old को return कर देगा. अगर की के कंटेंट डिफरेंट हैं, ध्यान रखिए, अगर यहाँ ओवरराइड ना करते तो वो रेफरेंस कंपैरिजन करने लगता, ठीक है. की के कंटेंट अगर डिफरेंट हैं, देन इट इज गोइंग टू स्टोर इन अ फॉर्म ऑफ लिंक लिस्ट, और ये लिंक लिस्ट भी एक सर्टेन थ्रेशोल्ड पे बाइनरी ट्री में कन्वर्ट हो जाती है. दैट्स इट. यू गॉट माय पॉइंट? अगर आपसे कोई ऐसे पूछता है, अगर आई वांट टू स्टोर कस्टम ऑब्जेक्ट इन अ हैशमैप, देन ऑल्सो हमें सेम वर्किंग बतानी है. If they are asking how HashMap internally works, then also you are going to explain the same things. You got my point? So, Yes, sir. yeah, so let me catch to someone else. Saurabh, Radhe, I think, Can you explain how HashMap internally work? Yeah, good morning. Mm-hmm.
हम्म अगेन आई थिंक यू फॉरगेट, आई थिंक कि आपको क्या करना है. या सो सौरभ, कैन यू म्यूट योरसेल्फ प्लीज. या सो क्वेश्चन आपका है ना, हाउ हैश मैप इंटरनली वर्क. तो यू नीड टू टेल कि हैश मैप इज अ इम्प्लीमेंटेशन क्लास ऑफ मैप. It is an implementation class of map. Any objects we want to store, it is stored object in a form of key value pair. You should explain in this way. I mean, you all should explain in this way. फिर उसकी कुछ properties आप बता दो, है ना. या हो सकता है इंटरव्यू वांट टू लिसन समथिंग, तो वो आपको इंटरप्ट करके बता देगा. फॉरगेट अबाउट प्रॉपर्टी, जस्ट यू कैन मूव, टेल दी हाउ इंटरनली इट वर्क. देन यू कैन से कि जब भी हम हैश मैप डॉट पुट मेथड कॉल करेंगे, whenever we are going to call hashmap dot put, the hashing, with the help of hashing mechanism, this object is going to we will get the index number. On that index number this object will store. But in Java there may be a chance two different object may have the same hash code. So here, I mean, collisions will happen, hash collisions will happen, or conflicts will create. So equal method will came into picture here, and what equal method is going to do, this equal method is checking both key content. जो ऑब्जेक्ट पहले से स्टोर है उसका भी की कंटेंट की निकालेगा, सॉरी की के जो कंटेंट है बेसिस ऑफ कीज कंटेंट, ऑब्जेक्ट विच वी आर गोइंग टू स्टोर, दोनों के की कंटेंट को आपस में क्या करेगा, ये मैच करेगा. अगर दोनों इक्वल हैं, इट इज गोइंग टू रिप्लेस विद द ओल्ड वैल्यू, ओल्ड वैल्यू को न्यू से रिप्लेस कर देगा एंड ओल्ड वन को रिटर्न कर देगा. इफ इट इज नॉट गोइंग टू द कंटेंट आर डिफरेंट, देन इट इज गोइंग टू स्टोर इन अ फॉर्म ऑफ लिंक लिस्ट. Or a linked list also convert into the binary tree. This enhance came in Java 1.8. This is an internal working of hash map. इसके बाद कुछ बच नहीं जाता कि वो आपसे बहुत ज्यादा कोई क्वेश्चंस बनाए. सो ऐसे आपको स्टोरी, एटलीस्ट यू शुड बी इन पोजीशन टू टेल दी स्टोरी. गॉट इट गाइस? You all should be in a position to tell this story, how hash map internally work. Okay, I will add this question in a mock interview as well, so be ready. This is very very important question. सबसे ज्यादा यूज होने वाला भी आपका मैप में अगर हम बोले तो हैश मैप ही है. ओके okay, so let me come on the notes, what is given in the notes. Okay, so I was just how this link, the difference between hash map and linked hash map is linked hash map preserves the insertion order and hash map does not preserve the insertion order. There is only one difference. Usko with practical you can verify how things are working. Let me show you here. So अभी मैं कोई custom object add नहीं करूँगा, just in generally I will explain how things are working. Okay. October. Weak map identity hash map and weak hash map is not that much important. Okay, just you can read about it and move on. सर हैश मैप में हम इटरेटर वगैरह भी अगर लगा सकते हैं क्या? अभी तो केवल ऑब्जेक्ट स्टोर करना बताया था. नाउ टुडे वी विल सी हाउ वी कैन इटरेट इट. सो इसको इटरेट कैसे करेंगे, वी डू हैव द मल्टीपल वे. ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है. इट्स different from that one. So let me tell you how I can explain. Collection, right? In the collection, hash map demo is there. Hash map demo, hash map demo. No, no hash map demo. Let me create here one of hash map demo. We are going to see. सर हमने अलग से पैकेज बनाया हुआ है मैप का. Right. I got your point. हमने अलग से मैप का पैकेज बनाया हुआ है. राइट. और अभी हमारे पास हैश मैप का डेमो नहीं है. ठीक है. शो हैश मैप डेमो. ओके, सो हियर आई एम क्रिएटिंग हैश मैप integer, comma
string hash map is equal to new hash map. Okay, so string control shift O. So just to import it, I did this. So just hash map dot put. तो मैंने यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे 101 किया एंड आई एम यूजिंग हियर नीलेश. जब भी मैंने हैश मैप डॉट पुट किया है तो क्या हुआ होगा इसमें, सर एक इंडेक्स क्रिएट होगा। इस लाइन से क्या हुआ होगा, एक लिस्ट क्रिएट हुई होगी 0 to क्रिएट होगी 0 to 16 15 साइज की, 0 to 15 इंडेक्स की 16 साइज की एक लिस्ट क्रिएट हुई होगी. ठीक है, जैसे कि अगर इसको आप समझोगे, यू कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, है ना. तो जैसे ही मैंने ये लाइन लिखी है, व्हेन आई राइट दिस लाइन ना, when I write this line, you guys will understand the meaning of it. जैसे मैंने ये लाइन लिखी है, when I write this line, तो you can understand क्या हुआ होगा यहाँ पे ना, what happened here. 0 to 15 यहाँ पे क्या हुआ होगा, जीरो टू 15 की क्या पे यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट हुई होगी, राइट. 0 to 15 साइज की एक यहाँ पे लिस्ट क्रिएट होगी. किस इंडेक्स पे ये स्टोर होगा वो हम नहीं बता सकते, राइट. वी कैन नॉट टेल दैट किस इंडेक्स पे स्टोर होगा. दैट एक्चुअली वी डोंट हैव द थिंग्स की वी कैन गेट टू नो ऑन विच इंडेक्स दिस इज गोइंग टू स्टोर. ओके, इस तरीके से जस्ट यू कैन अज्यूम कि आपके 0 to 15 है, मे बी सम लेस होगा. ओके, सो 0 इंडेक्स हो गया, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे आपका 15 कर देता हूँ. ठीक है, तो जैसे अगर मैंने ये लिखा हुआ है तो ये इसमें एक लिस्ट क्रिएट हो गई. ठीक है गाइस, अब किस इंडेक्स पे, जैसे ही अगर मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, इफ आई एम राइटिंग दिस हैश मैप डॉट पुट, जैसे ही मैंने ये किया हैश मैप डॉट पुट, ओके, व्हेन आई डिड दिस, क्या हुआ होगा इसके अंदर. अब आप मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे कुछ हमने इक्वल हैश कोड को ओवरराइड करने की जरूरत है क्या हमें, डू वी नीड टू ओवरराइड इक्वल हैश कोड. नहीं है सर. So whenever I am writing this, whenever I am writing this line 0 to 15 index की one of list will create. Whenever I am using hashmap dot put, hashmap dot put किया तो इंटरनल क्या हो रहा होगा, की के बेसिस पे हैशिंग मैकेनिज्म आपका अप्लाई होगा. इस की के बेसिस पे हैशिंग मैकेनिज्म अप्लाई होगा. मतलब हैशिंग मैकेनिज्म क्या करेगा, इसका हैश कोड निकालेगा, क्योंकि ये इंटीजर है, दिस इज इंटीजर, इसने पहले इक्वल हैश कोड को ओवरराइड कर रखा है, तो इसके हैश कोड को निकालेगा और उसमें कुछ हैशिंग अप्लाई करेगा और उससे क्या आ जाएगा, आपका इंडेक्स नंबर निकल के आ जाएगा. इससे हैशिंग, यहाँ पे क्या होगा, हैशिंग टेक्निक है ना, हैशिंग टेक्निक हो गया ना, हैशिंग टेक्निक यहाँ पे अप्लाई हुआ और जिससे हमने वी फाइंड इंडेक्स नंबर. जैसे लाइक जैसे 0 आ गया, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि इंडेक्स लाइक जैसे 0 आ गया इसमें. ओके, 0 इंडेक्स पे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा. ऑब्जेक्ट विल स्टोर ऑन दिस 0 इंडेक्स. ओके, अब आपने दोबारा से किया यहाँ पे, व्हेन अगेन यू डिड दिस, ओके, हैशमैप डॉट पुट 102 and Vikram. When you are doing this,
Vikram. Okay. When you are doing this, again you are doing this. When I am doing this, तो जावा में हो सकता है, there may be a chance if I am doing this, कि यहाँ पे हो सकता है कि इसका भी हैश कोड क्या निकले, सेम. बताइए किसका हैश कोड सेम हो सकता है यहाँ पे, विक्रम का या फिर 102 का, की का. 102 का हैशिंग किस पे, हैशिंग मैकेनिज्म किस पे अप्लाई होगी, की पर होगी ना. यस की पर, राइट. तो यहाँ पे चेक करेगा, अगर ये सेम हो गया है ना, तो उस केस में क्योंकि फॉर्मूला तो सेम ही है ना, मैक्स साइज से वो हैश कोड को डिवाइड करेगा, रिमाइंडर वुड बी द बकेट नंबर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोलाइजन, यू नो, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट विल क्रिएट हियर. यहाँ पे 101 पहले से ही है और विक्रम. ये कोई ऐसा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये ऐसा होगा ही होगा, ठीक है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, है ना. देयर मे बी अ चांस, इट डिपेंड करता है कि अपने हैश कोड का जो आपका हैश कोड जो मेथड है उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे दिया है. इंटरव्यूअर जनरली यू नो हाउ ही मेक अस कंफ्यूज कि क्या होगा अगर हम लोग हैश कोड से कोई कांस्टेंट वैल्यू रिटर्न करा दें. तो जब कांस्टेंट वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा तो रिमाइंडर सबका क्या आने वाला है, सेम ही आएगा, राइट. सेम आएगा तो बकेट भी सेम ही होगी. तो इक्वल मेथड हियर, इक्वल मेथड क्या करेगा, इक्वल मेथड विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर. वो क्या करेगा, जो आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो आप दूसरा ऑब्जेक्ट स्टोर करने जा रहे हो उसकी की और जो पहले से स्टोर है उसकी की, दोनों की को आपस में क्या करेगा, चेक करेगा. तो की के कंटेंट है दोनों क्या है, डिफरेंट है. तो जब डिफरेंट है तो क्या करेगा, यहाँ पे लिंक लिस्ट क्रिएट करेगा. ठीक है गाइस, लिंक लिस्ट क्रिएट करेगा और उस लिंक लिस्ट पे आपका ऑब्जेक्ट स्टोर हो जाएगा. और ये लिंक लिस्ट भी एक सर्टेन थ्रेशोल्ड पे किसमें कन्वर्ट हो जाती है, बाइनरी ट्री में. ये जावा 1.8 का इनहेंस है. और इस बार ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार लिंक लिस्ट बने आपका, हो सकता है इस इंडेक्स पे आएगा, अनदर विल कम हियर, अनदर विल कम हियर. देयर में भी कि बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ गया, उसका इंडेक्स 0 आ गया, तो वो क्या करेगा, यहीं पे ऐड होता जाएगा. तो लाइक दिस हैश मैप इंटरनली वर्क. ओके, नाउ वी कैन कम हियर, वी कैन अंडरस्टैंड कि हाउ इट्स वर्किंग. So let me add some more thing here. Hashmap dot put 103 and I'm putting here Saurabh. Okay. Output 104 comma I have added some element. ठीक है, अब how I can iterate, मैं इसको iterate कैसे कराऊंगा, अगला क्वेश्चन ये है. How I can iterate the hash map, हैश मैप को मैं iterate कैसे कराऊंगा, क्योंकि हैश मैप में कोई ऐसा तो है नहीं कि इसके अंदर मेथड हो, इटरेटर मेथड हो, उसके थ्रू हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं. तो लेट मी गेट कि ये नोट्स में दिया हुआ है कि नहीं, हाउ वी कैन इटरेट दी हैश मैप, हाउ वी कैन इटरेट दी हैश मैप. द आंसर यस, यहाँ पे दिया हुआ है हाउ वी कैन इटरेट. ठीक है, तो सबसे पहले इटरेट करने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी गाइस, इटरेटर के ऑब्जेक्ट की, राइट. किसकी नीड होगी हमें, सबसे पहले इटरेटर के ऑब्जेक्ट की. तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखूं, इटरेटर ITR इज इक्वल टू हैश मैप डॉट, इसमें है ही नहीं है मेथड, इट डज नॉट कंटेन दैट मेथड जो इसका ऑब्जेक्ट दे रहा होगा. ठीक है, जैसा हम लोग कलेक्शन में कर लेते थे, एरे लिस्ट में कर लेते थे. तो सबसे पहले हमें एंट्री सेट का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा. नो, वी रिक्वायर्ड दिस एंट्री सेट, सेट का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, है ना. सेट का ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा हमें, हाउ वी विल गेट सेट, सेट इज इक्वल टू हैश मैप डॉट एंट्री सेट. ये क्या किया हमने कि हैश मैप के अंदर एक मेथड होता है एंट्री सेट. आप लोगों ने गौर से देखा होगा 3 मेथड जो व्यू करने के लिए यूज हो रहे थे, स्पेशल मेथड थे. तो एंट्री सेट से हमें सेट का ऑब्जेक्ट मिल गया.
एस वी गॉट। तो अगर एक बार हमें सेट का ऑब्जेक्ट मिल जाए तो सेट के अंदर इटरेटर होता है कि नहीं होता, बताइए आप मुझे। इटरेटर ITR इज इक्वल टू सेट डॉट होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इससे इटरेटर का ऑब्जेक्ट ले लिया। अब हम लोग इटरेट कर सकते हैं इसमें। ओके, तो इटरेट करने के लिए डायरेक्ट इसमें मेथड अवेलेबल नहीं है। तो पहले हम लोग सेट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और सेट के ऑब्जेक्ट की मदद से इटरेटर का ऑब्जेक्ट निकालेंगे। अब इटरेटर की हेल्प से हम लोग इसको इटरेट करने वाले हैं। तो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, तो यू नीड टू फोकस गाइस हाउ इट वर्क्स। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, while ITR dot has next। ओके, ITR dot has next। ओके, सो अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि अगर आप करोगे यहाँ पे कि आप इससे कुछ कर सकते हो। लेट मी ट्राई टू पुट हियर ITR डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट तो होल ऑब्जेक्ट दे देगा। लेट मी ट्राई टू पुट हियर ITR डॉट नेक्स्ट, व्हाट इज गोइंग टू प्रिंट। ओके, just let me try to do this। okay, let me run it, what it is going to print here। see, तो हमने डायरेक्ट, जैसे अगर हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी क्या किया, नेक्स्ट की मदद से हमने ऑल ऑब्जेक्ट वी फेस। ओके, ऑल ऑब्जेक्ट वी फेस बट इट इज प्रिजर्विंग द इंसर्शन। सर हाँ सर, वही मैं पूछा था, तो इंसर्शन और प्रिजर्व कर रहा है। बट ये कोई ऐसा नहीं कि कर भी सकता नहीं भी कर सकता, वैसे इसको करना नहीं चाहिए। It does not preserve the insertion order। तो Saurabh, Vikram, okay, Nilesh, I don't know why it's doing, but it's okay। Dot put, let me try to add something here। 105 and it is preserving the insertion order। बट एक चीज यहाँ पे मैं और करता हूँ, लेट मी पुट, इसको शेष आउट में करूँ तो still it is preserving insertion order। let me try to do it। so we will see यहाँ पे नीलेश, विक्रम, सौरभ, Hari and Ravi। I don't know why it is doing, but it is preserving the insertion order, but it does not preserve, believe me। okay, it does not preserve। anyhow, why it is doing I don't know। I think before we have seen also ना, अगर मैं यहाँ पे let me create one test class, इसमें अगर नॉर्मल भी मैं यहाँ भी हमने किया था ना, we did here as well, right। मैं आपको भी print here, let me run it। is it preserving? so हरि, पवन, विक्रम, यहाँ पे देखो हरि, पवन, विक्रम, नीलेश, प्रभात, ये भी एक सीक्वेंस में ही आ रहा है गाइस। सर मेरा तो नहीं आ रहा है सीक्वेंस में। हाँ, तो ये मतलब प्रिजर्व करता नहीं है, बट ये अभी कर रहा है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये इसके उसमें नेचर में हो, डिपेंड करता है। हो सकता है इसी सीक्वेंस में स्टोर हो रहे हो उस समय ना। तो सर मैं एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करूं, दिखाऊं? दिखाओ। बाय नेचर वो नहीं करता, ठीक है, हमने पहले भी देखा था। इट डज नॉट प्रिजर्व द इंसर्शन ऑर्डर, बट हो सकता है कि उसमें उसी सीक्वेंस में उनका हैश कोड इस तरीके से आ रहा हो कि वो इस वे में ही स्टोर करेगा। वो स्टोर हैश मैप के केस पे ही करेगा। ये विजिबल है सर? विजुअल है। की भी तो डिफरेंट ले रखी है इस वाले में। कि अगर आप देखोगे 101, 102, 103, लेकिन हाँ ठीक है, ये तो एक तरह से शॉर्ट करके दे रहा है। हाँ, हमारे केस में क्या कर रहा है, शॉर्ट करके दे रहा है। ये सॉर्टिंग कर रहा है, इसमें भी सॉर्टिंग कर रहा है सर। उसने कीज प्रिजर्वेटिव नहीं ले रखी है, बट ये सॉर्टिंग कर रहा है, राइट। बेसिस ऑन आईडी इट इज डूइंग दी सॉर्टिंग। हाँ, वो तो करेगा ही यार, मैं समझ गया क्यों कर रहा है।
सॉर्टिंग क्यों कर रहा है? क्योंकि ये कंपेरेबल को इम्प्लीमेंट कर रहा है, लेकिन नहीं, उससे मतलब ही नहीं है, वो तो उसके लिए सुटेबल हो गया ना ट्री मैप में, जो आगे हम देखेंगे ना। एनीवे, इट डज नॉट प्रिजर्व द इंसर्शन ऑर्डर। तो एक बार मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, नॉर्मल नंबर हम लोग इसमें ट्राई करते हैं और वी विल मूव ऑन। ओके, but by nature you understand it does not preserve the insertion order. Okay, it does not preserve the insertion order, just remember Okay, that sir. thing. Okay, so okay, let me come here. Okay, it does not preserve the insertion order. अभी हम लोग iterating पे फोकस करते हैं, इसमें नहीं अभी पढ़ रहे हैं कि क्यों कर रहा है ना, we are not going in that. Okay, तो इटरेटिंग अगर हम लोग डायरेक्टली, अगर हम लोग चाहें तो ऐसे हम लोग इटरेट करा सकते हैं। ओके, अगर मैं लेकिन चाहता हूँ कि की वैल्यू मेरा प्रॉपर, अगर मुझे की निकालना हो, वैल्यू निकालना हो, देन हाउ आई कैन डू दैट वी कैन अंडरस्टैंड। सो अब डायरेक्ट इसमें गेट वैल्यू तो मेथड इसमें होता नहीं है, ठीक है गाइस, इज नॉट कंटेंट। अभी तो हमने ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रिंट करा लिया है यहाँ पे, राइट, बट दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो यहाँ पे क्या करते हैं, और एंट्री है ना, एक मैप के अंदर कौन सा होता है, एंट्री मैप होता है, राइट। मैप के अंदर क्या होता है, एंट्री, इंटीजर स्ट्रिंग एंट्री इक्वल टू एंड ITR डॉट नेक्स्ट होगा ना, ITR डॉट नेक्स्ट एंड आई हैव टू टाइप कास्ट इट। ये इसको मुझे क्या करना होगा, टाइप कास्ट करना होगा किसमें, map dot, give me a minute guys, map dot entry. Okay, सर एंट्री में इंटीजर तो हम कुछ भी ले सकते हैं कहाँ पर, यहाँ पे बोल रहे हो, हाँ, कुछ भी इन द सेंस आइदर आपकी, इंटीजर का 1 2 कुछ भी। आप इसकी बात कर रहे हो, हाँ सर, इधर अगर इंटीजर लिया है तो आपको यहाँ इंटीजर ही वैल्यू पुट करनी होगी, राइट। अगर कैट, ये नहीं ना कि जरूरी थोड़ी है 101 ही ले या 10, वो तो कुछ भी ले सकते हैं। कुछ भी ले सकते हो आप इसमें, वो ऐसा नहीं है, 7 ले लो, 107 ले लो, है ना, 101 ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो, तो उसमें ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ये तो वैल्यू हो गया ना वेरिएबल का, है ना। नाउ हमने क्या किया, यहाँ पे एंट्री का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। एनीथिंग एल्स यू आर सेइंग? नो सर। ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट नाउ, इफ वी टॉक अबाउट हियर कि नाउ वी कैन गेट एंट्री डॉट गेट की, गेट वैल्यू। इसके अंदर 2 मेथड है जिनकी मदद से हम लोग गेट की गेट वैल्यू पर्टिकुलर हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चाहे तो की भी निकाल सकते हैं हम लोग, है ना, एंट्री डॉट गेट वैल्यू, लाइक दिस ऑल्सो वी कैन इटरेट। सी, वी कैन इटरेट लाइक दिस, we can iterate in this way. Okay, so so like this we can iterate. Let me share this with you. तो ऐसे आपको क्या करना होगा, you need to iterate in this way. Okay, so try to iterate the map. How we can iterate? इसमें how I can give the why it is coming red, October group na, okay, let me share. Just give me a minute. Okay, later I will do this. So okay, so like this you can iterate. This could be the one of way. इसके अलावा और कैसे हम लोग iterate करा सकते हैं? नेक्स्ट हाउ वी कैन इटरेट, हम लोग फॉर ईच से भी इटरेट करा सकते हैं। ओके, एडवांस फॉर ईच से भी करा सकते हैं इटरेट। ओके, मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ एंड आई एम जस्ट शोइंग कि हम लोग फॉर ईच से कैसे इटरेट कराएंगे, हाउ वी कैन इटरेट थ्रू दी फॉर ईच। हैश मैप डॉट फॉर ईच। ओके, तो फॉर ईच क्या है,
फॉर ईच क्या है, देखो जरा फॉर ईच क्या है गाइस, फॉर ईच किसके अंदर है, हैश मैप के अंदर एक मेथड है फॉर ईच, मेथड है। इसके अंदर आर्गुमेंट किस टाइप का है देखिए आप, आर्गुमेंट का नाम बता सकते हो आप, इसमें आर्गुमेंट का नाम क्या है, एक्शन, और एक्शन का टाइप क्या है, बाय कंज्यूमर, बाय करनी। और बाय कंज्यूमर अपने आप में क्या है, ये फंक्शनल इंटरफेस, सी, और इसके अंदर एक एक्सेप्ट मेथड है, तो इसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं गाइस, लैम्डा एक्सप्रेशन, याद है आप लोगों को, तो लैम्डा एक्सप्रेशन हम लोग ऐसे लगा सकते हैं इसमें, जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं, you know, key comma value, like this we can give, okay, and I can use sysout here, and key, sorry, and let me put here v, sorry, v I need to put, and key I am putting here, key I am putting here, what happened, okay, let me try to run it, so still we are able to do this, okay guys, तो हम लोग है ना एडवांस फॉर इससे भी इसको क्या कर सकते हैं, इटरेट कर सकते हैं, okay, so I'm just sharing this as well. So lambda expression हम लोगों ने ऑलरेडी भी डिस्कस, आपको एडवांस फॉर ईच से करना है तो वी कैन डू, ओके, एडवांस फॉर ईच से इस तरीके से हम लोग इटरेट कर सकते हैं थ्रू द लैम्डा एक्सप्रेशन, ओके, सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, ओके, सो नेक्स्ट हमारा हैश मैप एंड लिंक्ड हैश मैप की अगर हम बात करें तो इट डज नॉट प्रिजर्व द इंसर्शन ऑर्डर, बट लिंक्ड हैश मैप क्या करता है आपका, प्रिजर्व्स करता है इंसर्शन ऑर्डर, है ना, इन द ऑर्डर इन विच वी आर स्टोरिंग, देयर इज ओनली वन डिफरेंस, where it preserves the insertion order. So let me create one example here, linked hash map demo, hash map demo, linked hash map demo, okay. So linked hash map is equal to new linked hash map, okay. यहाँ भी let me create the generic here, तो string comma string दोनों ही ले लेता हूँ, या मैं यहाँ पे integer, let me create, make it generic here, control shift O, so dot put and I'm putting here A, sorry, B, and here I'm putting some 101 dot put in the double quote A, and here I'm putting 102, okay, dot put C, and here I'm putting 103, okay. In this sysout, just I'm verifying it here, let me run it. So B
ए सी, जिस ऑर्डर में हमने स्टोर किया है उसी ऑर्डर में हम क्या कर पा रहे हैं इसको, वी आर एबल टू गेट इट। ओके सर वैल्यू पहले लिखा हुआ है तो ये इसका इसी तरह से है क्या? हाँ, वैल्यू तो हमने जैसे पहले हमने क्या स्टोर किया है इसमें, ये की है, की हम लोग कुछ भी बना सकते हैं, स्ट्रिंग इंटीजर एनीथिंग वी कैन टेक। तो ये जो दिख रहा है ये क्या है, की है। तो जो की का जो ऑर्डर है वो आप देखोगे जिस ऑर्डर में मैं स्टोर कर रहा हूँ उसी ऑर्डर में मैं क्या कर पा रहा हूँ, उसको रिट्रीव कर पा रहा हूँ। तो हम की में मतलब इंटीजर और स्ट्रिंग कुछ भी ले सकते हैं की में? ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इनकी जगह पे कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो आप, कुछ भी ले सकते हो आप, कुछ भी इन द सेंस प्रिमिटिव को छोड़ के एनी कस्टम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ले सकते हो, एनी रैपर क्लास टाइप के ऑब्जेक्ट्स आप ले सकते हो। Okay, but this is not a right way to iterate. राइट वे क्या है इटरेट करने का? सबसे पहले हमें किसका ऑब्जेक्ट चाहिए होगा गाइस? इटरेटर का। सेट इज इक्वल टू डॉट एंट्री सेट, हमें सेट का ऑब्जेक्ट दे देगा, ठीक है। एंट्री सेट ऑब्जेक्ट दे देगा। सेट के अंदर किसका मेथड होता है? अरे सेट का ऑब्जेक्ट हम क्यों बना रहे हैं, मतलब इसका कोई लॉजिक है? हाँ नहीं लॉजिक बिहाइंड दिस, मैं तब से एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चीज को। देयर इज अ रीजन कि मैं क्यों बना रहा हूँ। हम इटरेट करने के लिए हमें चाहिए इटरेटर का ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट चाहिए इटरेट करने के लिए? हमें चाहिए इटरेटर का ऑब्जेक्ट। अब इटरेटर का ऑब्जेक्ट लिंक्ड हैश मैप किसी मैप ऐप के अंदर डायरेक्ट नहीं है। कहां पर है इटरेटर? कलेक्शन में देखा था ना हम लोगों ने। यस सर। कि सेट के अंदर है, लिस्ट के अंदर है, क्यू के अंदर होगा, राइट। तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे पहले सेट का ऑब्जेक्ट लेंगे, सेट के ऑब्जेक्ट की मदद से फिर इटरेटर का ऑब्जेक्ट लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट इटरेटर अवेलेबल नहीं है। तो सेट का ऑब्जेक्ट कहां से मिलेगा? तो ये मैप के अंदर एक होता है एंट्री सेट, तो क्या देता है हमें सेट का मतलब ऑब्जेक्ट। मैप के अंदर इटरेटर नहीं है ऐसा? हाँ, मैप के अंदर इटरेटर नहीं है। आप वो हमें कलेक्शन में से वहां से लेना पड़ेगा। हाँ राइट। तो हम यहाँ पे अगर देखें, देखो यहाँ पे है ही नहीं। ये तो मैं पहले भी टाइप करके आपको दिखा रहा था ना, यहाँ पे है ही नहीं। इसलिए हमने क्या करना है, पहले सेट का ऑब्जेक्ट निकालना है। और सेट की मदद से अब हमें किसका मिल जाएगा? इटरेटर ITR इज इक्वल टू सेट डॉट इटरेटर। इससे हमें इटरेटर का मिल गया, ठीक है। और इटरेटर का मिल गया तो हम क्या लगा सकते हैं, अब इसको सॉरी इटरेट कर सकते हैं। while we can put here ITR dot has next, ओके। और इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर वन की वैल्यू अगर आपको चाहिए, जैसे ना आप डायरेक्ट भी प्रिंट करा सकते हो क्योंकि टू स्ट्रिंग ने ओवरराइड कर रखा है तो कंटेंट प्रिंट कर ही देगा। बट हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ हम एंट्री का ऑब्जेक्ट लेंगे, क्योंकि एंट्री मैप के अंदर क्या है गाइस? एंट्री के अंदर क्या है? एंट्री है क्या पहले तो ये बताओ आप लोग। क्लास है, इंटरफेस है, व्हाट इज दिस एंट्री? इंटरफेस है। किसके अंदर है? मैप डॉट एंट्री, ठीक है। तो पहले हमने एंट्री का ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। अब एंट्री का ऑब्जेक्ट बेसिकली अब हमें इसमें टाइप कास्ट करना होगा। तो ITR डॉट हैज नेक्स्ट, ओके। और इसे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे टाइप कास्ट करेंगे। टाइप कास्ट कैसे करेंगे? मैप डॉट एंट्री string integer would happen. Why it's giving the error? Cannot cast from boolean to cannot cast. उसमें हैश मैप लगा दिया है आपने? कहाँ पे लगा दिया मैंने हैश मैप गाइस? नेक्स्ट कर दिया। एब्सोल्युटली। यहाँ पे क्या करना चाहिए था मुझे? नेक्स्ट, राइट। नेक्स्ट करना चाहिए था, हैश नेक्स्ट लगा दिया मैंने, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो की निकाल सकता हूँ या वैल्यू निकाल सकता हूँ। एंट्री डॉट गेट की, अकेली की भी प्रिंट करा सकता हूँ, ठीक है ना। की भी प्रिंट करा सकता हूँ
या मैं क्या कर सकता हूँ इसकी जगह पे वैल्यू भी गेट वैल्यू भी कर सकता हूँ, ठीक है, दैट आई कैन डू इट। सी, या मैं दोनों एक साथ निकाल सकता हूँ, एनीथिंग आई कैन डू। सर ये वाइल के बाद लाइन नंबर 22 पे हम क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली इसका, ये क्या है? ये हम एंट्री का ऑब्जेक्ट निकाल रहे हैं यहाँ पे ना, एंट्री का, क्योंकि मैप के पास है ना गेट की गेट वैल्यू मेथड है नहीं। मैप के पास मतलब लिंक्ड हैश मैप के पास गेट की एंड गेट वैल्यू मेथड है नहीं। तो आप कैसे, या तो हम डायरेक्ट यहाँ पे इस ITR को प्रिंट करा लें, है ना, दिस कुड बी द वन ऑफ वे, लेकिन आपको की निकालना हो, वैल्यू निकालना हो, दोनों एक साथ निकालना हो, तो हमें जरूरत होगी किसकी, एंट्री के ऑब्जेक्ट की नीड होगी। और एंट्री कहाँ पर है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ एंट्री किधर है, वेयर इज दिस एंट्री? इंटरफेस, इनर इंटरफेस मैप के अंदर, मैप के अंदर ये इनर इंटरफेस है, इसलिए तो लिखा हमने मैप डॉट एंट्री, मतलब मैप के अंदर से एंट्री को कॉल किया और अब उसका एक रेफरेंस वेरिएबल लिया और फिर हमने जो ऑब्जेक्ट जो बनाया, जिसका जो ऑब्जेक्ट देगा ITR डॉट नेक्स्ट, उसको हमने टाइप पास कर लिया किसके अंदर, मैप एंट्री के अंदर। अब हमें एंट्री का ऑब्जेक्ट मिल गया, उसकी मदद से हम लोग गेट की गेट वैल्यू कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप देखो ना, एंट्री के अंदर चलो आप, एंट्री के अंदर आपके पास देखिए गेट की गेट वैल्यू इसके अंदर मेथड है, इसलिए हम इसको क्या कर पा रहे हैं, कॉल कर पा रहे हैं यहाँ पे। सर इसको हम टाइप क्यों कर रहे हैं? टाइपकास्टिंग बेसिकली टाइपकास्ट की नीड होती क्यों है, जरूरत क्यों होती है, टाइपकास्ट की नीड क्यों होती है हमें, राइट, वो हमें समझना होगा कि टाइपकास्ट की नीड हमें क्यों होती है। अगर आपने जैसे ना पेरेंट के रेफरेंस में चाइल्ड का ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, पेरेंट के रेफरेंस में चाइल्ड का ऑब्जेक्ट रख दिया और दोबारा से फिर से आपको चाइल्ड में लेके आना है, तो आप डायरेक्ट नहीं ला सकते, उसको टाइपकास्ट करना ही होगा। तो ये बेसिकली अभी जो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट है वो किसका ऑब्जेक्ट दे रहा होगा, वो हम देख लेते हैं। वैसे बाय द वे ये ऑब्जेक्ट किसका दे रहा होगा आपके अकॉर्डिंग, ITR डॉट नेक्स्ट है, ये किसका ऑब्जेक्ट दे रहा है, किसका ऑब्जेक्ट दे रहा है, इनका मैप का दे रहा होगा, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट इसका दे रहा है ना, ये वाला जो ये की वैल्यू पेयर, मतलब किसका है, लिंक्ड हैश मैप का दे रहा है, राइट। बट इसको हम स्टोर किस में कराना है, एंट्री के अंदर, है ना, मैप डॉट एंट्री के अंदर कराना है। मैप डॉट एंट्री है क्या, पेरेंट है इसका, ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ रहा है, इसको टाइपकास्ट करना पड़ रहा है। टाइपकास्ट का एक डिटेल में कॉन्सेप्ट है जिसको हम आगे समझेंगे, ठीक है, कि टाइपकास्ट काम कैसे करता है। फॉर दी टाइमिंग आप ऐसे ध्यान रखो, हालांकि हमने ओवरलोडिंग या ओवरराइडिंग कहीं ये पढ़ भी रखा है कि हाउ दिस टाइपकास्ट कॉन्सेप्ट वर्क, ओके, बट यहाँ पे वी हैव टू, अगर इसको हम हटा देते हैं तो यू विल सी, इससे भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब यू कैन ब्रिंग हियर माउस एंड व्हाट एरर इट्स गिविंग, टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू मैप डॉट एंट्री। ये आपका किस में आ रहा है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ रहा है, और ऑब्जेक्ट में कोई कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, किसके अंदर, मैप डॉट एंट्री के अंदर। तो कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टाइपकास्ट इट, ओके। अभी एक सिंपल ऑब्जेक्ट दे रहा है, इट इज गिविंग ऑब्जेक्ट, बट ये मैप डॉट एंट्री का ऑब्जेक्ट नहीं दे रहा है, वी हैव टू टाइपकास्ट इट, ओके। तो दैट्स व्हाई वी आर टाइपकास्टिंग इट। तो लाइक दिस वी कैन इटरेट, और अदरवाइज ये अगर हम ये सब नहीं करना चाहते तो इसकी जगह और क्या यूज कर सकते हैं, बताइए आप लोग। फॉर ईच, लिंक्ड हैश मैप डॉट फॉर ईच, और सिंपल यहाँ तो आप की लिखिए, कोमा वैल्यू लिखिए, एरो लगाइए यहाँ पर, बस बॉडी दीजिए, और यू विल पुट हियर p
प्लस ऑपरेटर कुछ स्पेस दो यहाँ पे एंड वैल्यू। ओके गाइस, हो गया बस। तो लैम्डा एक्सप्रेशन में इन सब का वो है ही नहीं कि पहले इसका ऑब्जेक्ट लेना है आपको, सेट का लेना है, फिर उसे इटरेटर का लोगे, फिर आप एंट्री मैप का बनाओगे, राइट। ये सब करना ही नहीं है। सबसे एडवांस ये रखो आप और इससे इटरेट करो। तो इसके लिए फॉर ईच ज्यादा सही है, बहुत सारी चीजें हैं। बेस्ट है आपके लिए फॉर ईच, है ना, सभी के लिए बेस्ट फॉर ईच यूज करिए। तभी तो जो एडवांस है वो यूज करिए आप, लेकिन ऐसा भी ना हो कि पुरानी भी चीज आपको समझ पड़नी चाहिए, है ना, पुरानी भी चीज आपको समझ आनी चाहिए। तो उसको भी हम लोग वो नहीं कर सकते। गाइस एम आई ऑडिबल? उसको भी हम लोग Yes, sir. इग्नोर नहीं कर सकते ना। तो एटलीस्ट वी शुड नो कि हमें ये इसमें इसलिए तो ये चीजें आई हैं। देयर लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन दिस, है ना। तो जनरली तो ये तो मैं तो हमेशा भूल ही जाता हूँ इसको, ये इटरेटर कैसे कैसे काम कर रहा है, राइट, कैसे मुझे इटरेट करना है। नाउ व्हेन आई एम स्टार्ट टीचिंग यू, तो अब थोड़ा सा मुझे आइडिया लग गया कि ये कैसे कैसे कर रहा है। अदरवाइज तो ऑलवेज आई यूज्ड टू फॉरगेट अबाउट इट, ये कैसे काम कर रहा है ना। लेकिन ठीक है, एडवांस फॉर ईच यूज करिए आप, ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम। एडवांस फॉर ईच यूज करिए आप, ठीक है। नॉर्मल फॉर ईच भी कर सकते हो आप। तो ये हमारा किसका एग्जांपल हो गया, लिंक्ड हैश मैप, ठीक है। Another class is here, अगला हम लोग बात कर, लेट मी गो थ्रू दी नोट्स। तो नोट्स में क्या क्या दिया हुआ है, तो दैट एक्चुअली वी गॉट इट। आइडेंटिटी हैश मैप, तो आइडेंटिटी हैश मैप को जस्ट समझ के रखते हैं, ठीक है। ये क्या है कि ये एग्जैक्टली सेम एज हैश मैप, ये हैश मैप की तरह ही है, आइडेंटिटी हैश मैप। फॉलोइंग इज द डिफरेंस इन द केस ऑफ हैश मैप टू द आइडेंटिटी डुप्लीकेट की, JVM ऑलवेज यूज, डुप्लीकेट की के लिए JVM क्या यूज करता है, डॉट इक्वल मेथड, ठीक है। विच इज मोस्टली मेंट फॉर, किसके लिए बना हुआ है, डॉट इक्वल इज मेंट फॉर रेफरेंस कंपैरिजन या कंटेंट कंपैरिजन। कंटेंट कंपैरिजन। अगर आपने ओवरराइड किया है तो, ठीक है, ओवरराइड किया है तो दैट इज मेंट फॉर कंटेंट कंपैरिजन। ओवरराइड नहीं किया है तो वो क्या होगा, रेफरेंस कंपैरिजन के लिए बना है। तो इसमें इफ वी वांट टू यूज डबल इक्वल ऑपरेटर इंस्टेड ऑफ डॉट इक्वल टू आइडेंटिफाई डुप्लीकेट की वैल्यू, वी हैव टू यूज आइडेंटिटी हैश मैप। आप चाहते हो कि उसमें वो कंटेंट पे ना करे, वो रेफरेंस पे करे, तो आप आइडेंटिटी हैश मैप यूज कर लीजिए, ठीक है। हैश मैप तो कंटेंट पे ही करेगा, बस यही डिफरेंस है, और बाकी लगभग सब कुछ सेम ही है, ठीक है। वीक हैश मैप देख लेते हैं। वीक हैश मैप क्या है, इट इज एग्जैक्टली सेम है, ये भी हैश मैप की तरह ही है। द फॉलोइंग डिफरेंस क्या है, इन द केस ऑफ हैश मैप ऑब्जेक्ट इज नॉट एलिजिबल फॉर जीसी। इसमें क्या है, आपका ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्टर के लिए एलिजिबल नहीं है, इवन दो इट डज नॉट हैज एनी एक्सटर्नल रेफरेंस, इट इज एसोसिएटेड विद द हैश मैप। तो हैश मैप क्या करता है, डोमिनेट्स गार्बेज कलेक्टर, बट इन द केस ऑफ वीक हैश मैप, इवन दो ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड विद weak hash map, it is eligible for GC if it does not have any external reference. So GC क्या करता है, डोमिनेट्स करता है किसको, वीक हैश मैप को। यहाँ गार्बेज कलेक्टर से इसका रिलेशन है। ये हैश मैप की तरह इन द केस ऑफ हैश मैप के केस में बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इज नॉट एलिजिबल फॉर GC, गार्बेज कलेक्टर के लिए एलिजिबल नहीं होता है, ठीक है। बट इन वीक हैश मैप आपका अगर उसमें कोई रेफरेंस नहीं है तो वो ऑब्जेक्ट GC उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, दैट्स इट। तो ये जस्ट इनको पढ़ के रखो, है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सॉर्टेड मैप। सॉर्टेड मैप इज नथिंग वन ऑफ इंटरफेस है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट की, लास्ट की, हैश, ये सब है ना, ये इंटरफेस है। एक नेविगेबल मैप है, वो भी आपका क्या है, इंटरफेस है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट क्लास है वो है ट्री मैप, इस पर फोकस करिए आप। ट्री मैप को क्या बोल रहे हैं कि द अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर क्या है, इसका रेड ब्लैक ट्री है, ठीक है, रेड ब्लैक ट्री, ये इसका इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर है। और लेट मी टेल यू, जो हैश मैप के अंदर जो यहाँ पे जो एक लिस्ट बन रही है ना, इसका भी नेचर रेड ब्लैक ट्री ही है, ठीक है।
इसका भी इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर रेड ब्लैक ट्री ही है। कभी कभी इसको बैलेंस ट्री बोल देते हैं, बाइनरी ट्री बोल देते हैं, रेड ब्लैक ट्री बोल देते हैं, ठीक है। सो रेड ब्लैक ट्री इज नथिंग, एक एल्गोरिथम है, ठीक है। उसके बेसिस पे इसको क्या किया है, इम्प्लीमेंट किया गया ट्री मैप को। सो सॉरी, आई वाज जस्ट सेइंग कि लिंक लिस्ट नहीं, ये जो लिंक लिस्ट के बाद यहाँ पे जो एक बाइनरी ट्री कन्वर्ट होती है ना, यहाँ पे उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें आपका रूट होगा, ये इसकी ब्रांचेज होंगी, लेफ्ट राइट ब्रांचेज होती हैं इस तरीके से। तो इसका जो इंटरनल है वो रेड ब्लैक ट्री ही है, और ट्री मैप का भी इंटरनल किस पे बेस्ड है, रेड ब्लैक ट्री। इसमें क्या होगा अब बताइए, ट्री मैप स्टोर करता है ऑब्जेक्ट्स को, की को नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर में स्टोर करेगा। तो क्या ये कभी इंसर्शन ऑर्डर पिकअप कर पाएगा? No, sir. No, sir. क्योंकि उसको ऑर्डर मेंटेन करना है, उसको एक नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर मेंटेन करना है, तो वो नहीं कर सकता। If we are depending on default natural sorting, then the key should be क्या होनी चाहिए आपकी यहाँ पे, homogeneous। अगर आपको नेचुरल सॉर्टिंग करनी है असेंडिंग ऑर्डर में, तो की आपकी क्या होनी चाहिए, होमोजीनियस। और ये सेट में भी देखा होगा आपने कि सेट में भी ऑब्जेक्ट आपके क्या होने चाहिए, होमोजीनियस। यहाँ भी आपका ट्री मैप में जो की है वो क्या होनी चाहिए, होमोजीनियस, अदरवाइज वी विल गेट क्लास कास्ट एक्सेप्शन, ठीक है। सो इफ वी आर डिफाइनिंग अवर ओन सॉर्टिंग ऑर्डर बाय कंपैरेटर, मतलब अगर नेचुरल चाहिए तो होमोजीनियस होना चाहिए, खुद की सॉर्टिंग प्रोवाइड करानी कस्टम, तो क्या यूज कर लोगे आप यहाँ पे, कंपैरेटर यूज कर लोगे, ठीक है। द कीज नीड नॉट टू बी होमोजीनियस एंड कंपेरेबल, अगर आप कंपैरेटर अचीव कर रहे हो तो। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन वैल्यू, वैल्यू पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इट कैन बी होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, नॉन कंपेरेबल, इट डजंट मैटर। डुप्लीकेट आर नॉट अलाउड, बट वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट, ठीक है। की null exempt, guys, can you mute yourself please? So let me help you guys to mute you. Okay, so null acceptance till Java 1.7 आप एक बार null allow कर सकते थे इसमें की में, लेकिन 1.8 से में आप एक बार भी allow नहीं कर सकते, की में आपका null allow है ही नहीं। तो इसमें जो भी लिखा है जस्ट इग्नोर इट, कि 1.7 तक इसमें लिखा होगा कि आप एक बार नल अलाउ कर सकते हो, बट 1.8 से फॉरगेट अबाउट कि नल अलाउ नहीं करता, ठीक है। नल एक्सेप्टेंस है ही नहीं इसमें। बहुत सारे कंस्ट्रक्टर हैं ट्री मैप के, जैसे जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर है, कंपैरेटर को पास करके हम यूज कर सकते हैं, राइट। एंड ट्री मैप में मैप भी पास कर सकते हैं, सॉर्टेड मैप भी पास कर सकते हैं। हियर वी कैन सी वन ऑफ एग्जांपल फॉर दिस ट्री मैप। ट्री मैप, मैप इज इक्वल टू न्यू ट्री मैप, और यहाँ पे इन्होंने बहुत सारा एलिमेंट ऐड कर दिया, 100, 103, 101, इस टाइप से एलिमेंट इन्होंने ऐड कर दिया। की के बिहाफ पे ये क्या कर देगा, इनको सॉर्ट कर देगा, ठीक है। तो जब भी इसको प्रिंट कराएंगे तो देखिए 100, 101, 103, 104, ये डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर यहाँ पे कर लेगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द ट्री मैप, ट्री मैप। अगला एग्जाम्पल इन्होंने क्या दिया है यहाँ पे, कि इन्होंने कस्टम सॉर्टिंग के लिए दिया हुआ, नेचुरल तो डिफॉल्ट हो जाती है उसमें, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, अगर कस्टम ऑब्जेक्ट में की आप, सॉरी, कस्टम ऑब्जेक्ट या की आप ट्री मैप में स्टोर कर रहे हो, तो आपका ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए गाइस, कस्टम ऑब्जेक्ट एज अ की आप स्टोर कर रहे हो ट्री मैप के अंदर, तो आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए कंपेरेबल, अदरवाइज ये आपको क्लास का एक्सेप्शन दे देगा, ठीक है। सेम वैसा ही है जैसे हम लोग उसमें देख रहे थे ट्री सेट में। कस्टम सॉर्टिंग, अगर कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट आप डाल रहे हो, और आई मीन तो इट विल गिव दी एरर, बट यहाँ पे देखिए आप ट्री मैप में कस्टम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। हाउ वी कैन डू इन ट्री मैप, सी, तो ट्री मैप का ऑब्जेक्ट बनाते समय ही आप यहाँ पे कंपैरेटर का ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो। वो कंपैरेटर क्या कर रहा होगा, कंपैरेटर आपका क्या कर रहा होगा, थ्रू द कंपैरेटर कंपेयर टू को ओवरराइड कर लिया हमने अपनी क्लास में, और अपने हिसाब से इसका इम्प्लीमेंटेशन दे दिया, और फिर हमने उसको यहाँ एज आर्गुमेंट पास कर दिया। अब आप ऑब्जेक्ट ऐड करोगे तो ये क्या करेगा, कस्टम सॉर्टिंग ऑर्डर कर लेगा, जो भी हमने सॉर्टिंग दी हुई उसके भी आप, ठीक है गाइस।
तो ट्रीज मैप के बारे में और पढ़िए, एग्जाम्पल हम लोग अगली क्लास में देख लेंगे, ठीक है। हैश टेबल और हैश मैप में दो डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना होगा। आपको जब भी हैश टेबल और हैश मैप में डिफरेंस करना होगा तो आप याद कर लीजिए जो वेक्टर और एरे लिस्ट में डिफरेंट है कि वेक्टर के सारे मेथड सिंक्रोनाइज है या हैश टेबल के सारे मेथड सिंक्रोनाइज है। दूसरा एक डिफरेंस और है इसमें कि मैप के अंदर हैश मैप में क्या होता है की आपकी एक बार ही अलाउड होती है, ठीक है, की आपकी वन टाइम अलाउड है, बट इन हैश टेबल में की वैल्यू नल आप नहीं डाल सकते, उसमें नल एक बार अलाउड रहती है, ठीक है, वैल्यू कैन बी मल्टीपल टाइम, ये इसमें डिफरेंस है, ठीक है। ये इन्होंने इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है, ठीक है। लेगेसी क्लास है, प्रॉपर्टीज और आपका ये जो प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेंगे कि ये फाइल में भी यूज होती है, तो इसका हम लोग विद प्रैक्टिकल वी विल सी इट, ओके। इसके बाद हम लोगों का क्यू बचा हुआ था कलेक्शन में, तो मोस्ट प्रोबेबली कल हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। क्यू हमारा अभी बचा हुआ था, ठीक है। सो अगेन वी विल टॉक अबाउट द क्यू इन द कलेक्शन एंड और इसका कुछ प्रैक्टिकल वी विल सी इट, ओके। सो आई थिंक फॉर दिस टुडे आई हैव डन। So anyone have any question, feel free to ask. So अब इसके बारे में पढ़िए, लगभग आप देखोगे तो यूज करने का सबका तरीका क्या है, सेम ही है कलेक्शन का ना, कुछ कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगे। ट्री सेट और हैश मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। ट्री सेट एंड ट्री मैप एंड हैश मैप, राइट। सेट में अगर बात करें तो वहां पर ट्री सेट और हैश सेट वो इंपॉर्टेंट है। कलेक्शन की बात करें तो एरे लिस्ट एंड लिंक लिस्ट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इतना ज्यादा नहीं, क्यों को हम लोग जस्ट पढ़ के रखेंगे, ठीक है। तो रियली कोई एक आध क्वेश्चन आएगा तो आएगा क्यों से, ठीक है। सो एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, एनी कंसर्न? तो जो भी मैंने प्रोग्राम आपको भेजे हैं आप ट्राई करिए, ठीक है।